Greetings, students, and welcome back to the English class. Now, let us continue with the chapter The Browning Version by Terence Rettingen. Okay, and children, let us continue with the second part of it. Actually, who had written it? Terence Rettingen. Now, the Browning version is a play highlighting the attitude of the teenage student towards its teacher. Now, before we start, let us just revise the chapter. Now, who were the characters? Let us see the characters. It was Mr. Cocker Harris, the strict teacher, Mr. Frank Hunter, who was the science teacher, John Taplow, the teenage student, and Mrs. Crocker Harris, Miley Crocker Harris, who was Mr. Crocker Harris's wife. Now, before starting, let us just summarize within a minute that what we had done. Now, this play is set in a school. A 16-year-old teenage boy named Taplow is there in an opening of the scene. Taplow has come to do some extra work, for his teacher, Mr. Cocker Harris, and has to wait for him as he is yet to arrive. Now, Frank was another teacher who, on seeing Taplow waiting, strikes a conversation with him. Right? Frank, during the conversation, gets to know that Taplow is waiting for his result, which are yet to come. He's interested in specializing in science and hopes to get a good result. The headmaster declares the result on the last day of the term on request of Mr. Cocker Harris, who does not declare the result himself. Now, the conversation between them, Taplow and Mr. Frank Hunter, mindsets regarding his dislike towards Greek play and interest in science. Taplow confessed to Frank during their conversation that he dislikes the Greek play and hates the teaching method of Mr. Cocker Harris. He does not like the teaching. Now, he tells Frank that the play is not that bad, but he's more interested in science. Now, Taplow had to do a lot of extra work as he had missed a class a week ago because he was ill. Frank suggested that he might get his removal for doing extra work with it. Now, Taplow refuses to accept as he feels Mr. Cocker Harris is different from other teachers and such rule doesn't work with him. Also, he does not appreciate the extra work done by students. Now, let us continue with the chapter, children. Now, in the above line, we says extra work on the last day of school, where Frank Hunter says, and Taplow says, yes sir, and I might be if I wouldn't be here, okay, if I wouldn't be here, I would have played golf. Okay, so Taplow agrees that he would have liked to play golf in this time. You would think he would have enough to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. Now, because Cocker Harris is going out of station tomorrow, he too must be busy today. Okay. Oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather, sir. तो he's like, but वो बोलता है, टैपलो बोलता है कि सर मैं पिछले हफ्ते क्या हो गया था, बीमार हो गया था, तो वो एक्स्ट्रा काम मैं अब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस समय क्या कर दी थी, क्लास मिस कर गई थी. सो आई एम हियर टू लर्न द लेसन. अब वो फिर वेदर की बात करता है, बोलता है देखो सर कितना वेदर कितना अच्छा है. देन फ्रैंक बोलता है बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट. वो बोलता है फ्रैंक कंसिडर्ड इट अ बैड लक फॉर टैपलो टू डू एक्स्ट्रा वर्क. वो बोलता है तेरे तो बैड लक है, तू इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है. यू आर प्रिटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. तो बोलता है फ्रैंक थिंक्स दैट टैपलो इज डूइंग एक्स्ट्रा स्टडी सो ही शुड बी सर्टन ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स टुमारो. तो बोलता है कि तुम ना ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो बेटा, वो क्या करेगा, तुम्हें रिमूव दिलाएगा. रिमूव का मतलब क्या था, प्रमोशन दिलाएगा. यू विल बी गोइंग टू अ नेक्स्ट ग्रेड. ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्स्ट्रा वर्क. फिर टैपलो बोलता है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. वो बोलता है सर आई एम नॉट श्योर दैट वुड बी ट्रू of the ordinary masters. He says that such rules apply to ordinary teachers. जो बोल रहे कि ऐसे rules तो ordinary teachers को apply करते हैं. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's
टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, तो बोलता है कि दे विल गिव गुड ग्रेड्स टू अ स्टूडेंट फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, है ना। बोलते कि वो चैप मतलब बच्चे स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि अगर कोई और टीचर होता और वो एक्स्ट्रा वर्क करता है तो वो टीचर क्या देती, उसको रिमूव देती, उसको प्रमोशन देती। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल डजन अप्लाई टू क्रॉक, तो बोलता है बट ये जो सारे रूल्स हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क का रूल है, वो किसको अप्लाई नहीं करता, मिस्टर क्रॉकल हैरिस को अप्लाई नहीं करता। अब वो पहले मिस्टर क्रॉक बोलता है, उसको पूरे नाम से टैपलो क्या बोलते हैं, उसको एक रिस्पेक्ट नहीं देता है, बोलता है बट दिस सॉर्ट ऑफ रूल डजन अप्लाई टू द क्रॉक, ठीक है। एंड देन वो उसको रियलाइज़ कर रहे ओ मैं तो मिस्टर फ्रैंक हंटर के बारे में के सामने बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं ओह मिस्टर क्रॉकर हैरिस। देन ही सेज आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउटराइट, okay, then he say I asked him yesterday outright if he would given me a remove, एंड डू यू नो वट ही सेड सर, उसने बोला येस्टरडे मैंने उनको डायरेक्टली पूछा कि व्हाट ग्रेड ही वुड गिव मी, क्या मैं प्रमोट होऊंगा दूसरी क्लास में, और तुम्हें पता है उन्होंने क्या आंसर दिया है। तो फ्रैंक बोलता है नो व्हाट, तो बोलता है नो मुझे तो नहीं पता, आप बताओ क्या दिया है। देन टैपलो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोट वाइट, इमिटेटिंग मतलब आप कॉपी कर रहा है, कैसे, जैसे मिस्टर कॉकर हैरिस बात करते हैं तो क्या है, थ्रोटी वॉइस, हार्डर वॉइस मतलब हेवी वॉइस, माय डियर टैपलो। अब ये कौन कॉपी कर रहा है, तो विद अ थ्रोटी रफ वॉइस, तो बोलते हैं मिस्टर टैपलो ऐसे बोलते हैं माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। वो बोलता है कि वो ऐसे बात करते हैं कि माय डियर टैपलो जो तुम डिजर्व करते हो वही मैंने तुम्हें दिया है, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, तो बोलते हैं उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, तो वो बोलता है Taplow tries to copy heavy voice of Mr. Harris, and Mr. Harris had informed Taplow that he had given Taplow as many marks as he deserved. He has not given him more marks. He has not given him less marks either. So Taplow thinks that Mr. Harris has not given him less marks. So Taplow thinks that teacher is not a good human being. तो ही इज़ लाइक डू यू नो आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, होता है मुझे लगता है मुझे फेल ही कर दें, रादर दैन आप बोल रहे अच्छे मार्क्स से ज़्यादा कम मार्क्स दे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, तो बोलता है कि मुझे लगता है ना जो टीचर्स होते हैं वो गुड ह्यूमन बीइंग नहीं, ये बात थोड़ी अच्छी है कि मैं एक्स्ट्रा काम भी कर रहा हूँ बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए हैं। तो फिर वो सडनली रियलाइज़ करता है कि वो किससे बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, तो वो फिर बोलता है वो अपनी चेंज करता है भाषा, बोलता है सॉरी सॉरी सर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ क्या, ठीक है। देन फ्रैंक येस मच टू फार, फिर फ्रैंक बोलता है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। Then Taplow imitating a very gentle rather throaty voice, अब फिर से उसकी फिर से उनकी वॉइस को कैरी करता है, ठीक है। सॉरी हियर सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे, तो टैपलो बोलता है सॉरी सर मैं ना भावनाओं में बह गया हूँ, ठीक है। आई गॉट कैरिड अवे टू डू और से विदाउट कंट्रोल, ठीक है। आई गॉट कैरिड अवे, देखो ये वाला वर्ड है, ये है, सो ही गॉट कैरिड अवे टू डू और से विदाउट एनी कंट्रोल। देन Frank evidently he picks up the newspaper and opens it. It's not it's a Taplow. तो अब वो क्या करता है, क्लियरली फ्रैंक हंटर थे, वो अपना न्यूज़पेपर उठाते ओपन करते हैं एंड इज लाइक टैपलो, और फिर उसको आवाज़ मारते हैं, ठीक है। टैपलो बोलता है यस सर व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू, तो फिर वो बोलता है फ्रैंक हंटर बोलते हैं फिर से मुझे बताओ कि क्रॉकर हैरिस तुम्हें क्या बोल रहे थे, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए रिपीट कर सकते हो वो वर्ड्स, ठीक है, वुड यू क्या तुम करोगे। देन टैपलो इमिटेटिंग अगेन, अब फिर टैपलो ने किसकी तरह बोलना शुरू कर दिया, क्रॉकर हैरिस की तरह बोलने, माय डियर टैपलो, क्योंकि थ्रोट बहुत हार्श थी, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व,
नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। और फिर से वही बोलना शुरू कर दिया कि देखो सर, उन्होंने यही बोला कि माय डियर टैपलो, तुम जितना डिज़र्व करते हो मैंने तुम्हें उतना ही दिया है, ना उससे ज़्यादा दिया है ना उससे कम दिया है। देन फ्रैंक लुकिंग सिवियर, सिवियर मीन्स हार्श, not in the least like him. Read your nice Aeschylus and be quiet. तो अब वो बोलता है, Taplo again repeat that Harris have told him. Now Frank harshly says that Mr. Harris normally does not utter such words. वो गुस्सा हो जाता है कि ऐसे नहीं बोला होगा. He advises Taplo to read Aeschylus and to remain silent. Taplo is surprised. तो वो बोलता है कि यार ऐसे क्यों सर बोल रहे, अभी तो बोल रहे रिपीट करो, और जब मैं रिपीट कर रहा हूँ तो उनको गुस्सा आ रहा है। नाउ जो टैपलो था उस लुकिंग सिवियर, ठीक है, नॉट इन लीस्ट, ठीक है। तो फ्रैंक जो था बहुत सिवियर, उसको गुस्सा आ गया कि ऑब्वियसली वो दूसरे टीचर के बारे में ऐसे क्यों सुनता। और फिर टैपलो वो बोलता है ना, अपनी बुक जाओ, अपनी बुक एस्चिलस रीड करो, ठीक है, रीड योर नाइस एस्चिलस एंड बी क्वाइट। टैपलो डज नॉट लाइक एस्चिलस, इज लाइक एस्चिलस, ठीक है, वो बोलता है कि मैं एस्चिलस पढ़ूँ। Then Frank, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? अब Crocker Harris पूछ रहे हैं कि बता मिस्टर हैरिस ने तुम्हें कब तक ये बुलाया था, कब बुलाया था? 6:30 सर। तो उसने बोला 6:30 बजे मुझे यहाँ पर बुलाया था। वेल ही इज़ 10 minutes लेट। अब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो क्या है, ही इज़ 10 minutes लेट। वाई डोंट यू कट, कट मीन्स टू एंड और डिसकंटिन्यू। बोले तुम घर क्यों नहीं जाते हो यहाँ से, या तुम चले क्यों नहीं जाते? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। बोल रहे हैं कि यू कुड, तुम गोल्फ खेल सकते हो बिफोर द स्कूल गेट्स क्लोज। तो फ्रैंक आस्क व्हाट टाइम हैरिस was to come here। तो ठीक है, सो टैपलो रिप्लाइज कि ही was to come at 6:30, 6:30 आना था, बट फिर फ्रैंक बताते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, 6:30 से भी ऊपर हो चुका है। तो फिर टैपलो सजेस्ट करता है कि अब तुम जाके गोल्फ क्यों नहीं खेल लेते हो जब तक क्या है स्कूल क्लोज नहीं हो, अभी स्कूल क्लोज नहीं हुआ है, तो वाई डोंट यू प्ले व्हाट यू कॉल इट गोल्फ, ठीक है। Now Taplo really shocked. Oh no, I couldn't cut. बोले नहीं, I couldn't go. I don't want to go. Cut the crock. ठीक है, Mr. Crocker Harris. So Taplo is shocked to listen to the advice of Frank. He says that he cannot even think of avoiding Mr. Crocker Harris. तो बोलते हैं, oh no, I couldn't cut. Cut बोले मैं कैसे जाऊँगा? कट द क्रॉक। फिर वो से उनका नाम से बोलता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं आता है। फिर उसको याद आता है मैं टीचर से बात कर रहा हूँ। देन ही गोज अगेन, मिस्टर कॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर। गॉड नोज what would happen if I did. He would probably follow me home or something with it. I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. बोलते मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं ऐसे काम करूँगा कि वो नहीं है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा. God knows what would happen. बोले अगर मैंने ऐसे काम किया तो पता नहीं भगवान जाने क्या हो जाएगा. He would probably, वो घर तक मुझे फॉलो करते हुए आ जाएंगे. ठीक है. Then Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys. ठीक है. In the form. ठीक है. You all seem to be scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? तो वो फ्रैंक बोलता है आई मस्ट एडमिट, बोले मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई एनवी हिम, मैं उससे जेलस हूँ कि जैसे वो तुम्हारे ऊपर उनका इफेक्ट है. ठीक है. इन दी फॉर्म मीन्स क्लास. ठीक है. सो इन दी फॉर्म मीन्स क्लास. तो बोलते मैं बहुत जेलस करता हूँ कि तुम लोग जैसे वो तुम लोगों को ट्रीट करते हैं. राइट. यू ऑल सीम टू बी स्केयर टू दैट, वो तुम इतना ज़्यादा उनसे डरते हो. ठीक है. यू आर हाईली स्केयर्ड ऑफ हिम. तो फिर वो बोलता है कि व्हाट डज ही डू, बोलते वो करते क्या है ऐसा. बीट यू ऑल और समथिंग, वो बोलते तुम्हें मारते पीटते हैं क्या तुम लोगों को. फिर टैप लोग बोलता है गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स. वो बोलते
गुड लॉर्ड सर, नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट. सैडिस्ट मतलब वो पर्सन जिनको पेन देने में मज़ा आता हो. तो टैप्लो बोलता है नहीं नहीं सर, ही इज़ नॉट दैट सैडिस्ट पर्सन हु लाइक्स गिविंग पेन टू पीपल लाइक हिटिंग लाइक वन और टू और दी अदर्स. अब फर्दर जैसे और दो टीचर्स हैं उनकी तरह नहीं है. आई बेग योर पार्डन. वो बोलते क्या, फिर से रिपीट करो. सैडिस्ट सर. वो बोलते सैडिस्ट सर, सैडिस्ट इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. तो बोलते कि नहीं नहीं वो सैडिस्ट हैं, सैडिस्ट नहीं है. Frank, indeed, but I think you went on to say that some other master. बोलते कि नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सैडिस्ट की मीनिंग क्या है, मुझे पता है सैडिस्ट का मीनिंग क्या है. बट मैंने जैसे तुमने बोला है, तुमने आगे भी 2-3 सेंटेंस बोले हैं कि जैसे और एक लाइक वन और टू ऑफ द अदर टीचर्स. सो टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. बोल रहे हाँ सर, ऐसे 2-3 टीचर हैं जो क्या करते हैं, मारते हैं. राइट चिल्ड्रन, राइट. तो बोलते हैं वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. बोले आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो कौन है. राइट. ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड द थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, वेल comparatively anyone, and you are science, you must know what sadism is. So Taplo says that some other teachers are certainly sadist. ठीक है. आई डू नॉट वॉन्ट टू नेम. बोलते मैं नाम नहीं देना चाहता उनका. यू ऑल्सो नो देयर नेम्स. बोलते आपको भी उनका नाम पता है. मोस्ट टीचर थिंक्स, और सारे टीचर, कई टीचर ये सोचते हैं दैट स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि बच्चे कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं. बट सर यू आर डिफरेंट. बट आप तो बहुत डिफरेंट हो. यू आर रिलेटिवली यंग, आप उनसे यंग हो. यू आर टीचर ऑफ साइंस, सो यू नो व्हाट सैडिज्म इज. बोल रहे तुम बहुत कंपैरेटिवली हो और तुम साइंस के टीचर हो, तो तुम्हें पता है ना सैडिज्म क्या होता है. फ्रैंक डज नॉट स्पीक फॉर अ वाइल, देन ही सेज दैट आवर स्कूल इज सर्टनली चेंजिंग. ठीक है. फॉर फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आवर स्कूल इज कमिंग टू. अब फ्रैंक बोलता है ना आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सोचता है, बोलता है भगवान हमारा स्कूल. देन ही सेज दैट आवर स्कूल इज सर्टनली चेंजिंग. क्या अब हमारा स्कूल भी चेंज होता जा रहा है. राइट. देन टैप्लो, एनी वे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट. द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट. देखो अब वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुका है. वो किसको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको डायरेक्ट नाम से बोल रहे हैं. राइट. कौन, टैप्लो. राइट. देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Right, he's saying that's what I am saying. Okay, he wouldn't be so frightened if he were, because at least it would show he had some feeling, but he hasn't. He's all shriveled up. Shriveled up means dried, not having any feeling inside him, like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. तो बोल रहा है टैप्लो again confirm that it in his opinion Mr. Croc is not sadist. और फिर उसके बाद फिर से वो confirm कर रहा है कि सर मिस्टर क्रॉक क्या है, sadist नहीं है. ठीक है. फिर if he were a sadist he would not be afraid of him. बोल रहे अगर if he were a sadist, बोल रहा अगर वो sadist होते, ठीक है, तो we would not be so afraid of him. ठीक है. तो हम afraid नहीं होते, because we will know that he has some feelings, because हमें पता है कि उनके अंदर कुछ feelings है, but he does not have any feelings. ठीक है. तो but जो क्रॉकर है उनके अंदर क्या है, कोई फीलिंग्स नहीं है. ठीक है. ही इज ऑल शिवल्ड अप मीन्स ही हैव्स नो फीलिंग. ठीक है. he does not want, he does want that people shouldn't like him, so he's like shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people or like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. तो बोलते any other teacher wants being liked by people. बोलते वो नहीं चाहते वो कि वो कोई उनको पसंद करे. ठीक है. तो टैप्लो बोलता है कि क्रॉकल सर इतने वो हाश हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई उनको पसंद करे. ठीक है. फ्रैंक,
and I don't know any boy who doesn't use that for his purpose. For that his own purpose means, then he says that Frank says that it is applied for students also, meaning that every student also wants to be liked. वेल इट्स नेचुरल सर, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉर इट्स ओन पर्पस यूज दैट, दैट मतलब बटरिंग, ठीक है। एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज बटरिंग फॉर हिज ओन पर्पस। बोले मुझे तो ऐसे बच्चे नहीं पता कि जो बच्चे क्या करें, बटरिंग करें। वेल इट्स नेचुरल सर, फिर वो टैपलो बोलता है इट इज़ नेचुरल बट नॉट विद द क्रॉक, बोलते हैं बट ये क्रॉक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रैंक फिर से उसको करेक्ट करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो फिर उसको बोलता है कि नहीं नहीं, ही इज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है। देन फिर टैपलो आता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीम्स इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। तो बोल रहे ही सेज इट फनी, बोल रहे इन सब चीज़ों के बाद भी आई डू रादर लाइक हिम, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। सो ही सेज इट इज़ फनी दैट ही स्टिल लाइक्स मिस्टर हैरिस, राइट। कॉकर हैरिस को भी इतना पसंद करता है। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीम्स इट दैट सीम्स टू श्रिवल अप इवन मोर। तो फिर वो बोलता है he further reduces feeling of Mrs. Harris, he becomes more dry, ठीक है। तो बोलता है कि इससे पता चलता है, राइट, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, बोलते कि अब मुझे ऐसा लगता है तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना है। एग्जैजरेटिंग मीन्स बूस्टिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बोलते अब तो ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे कि जैसे वो हैं मैं फिर भी उनको पसंद करता है, आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट्स सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, उनको फीलिंग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लगती है। तो बोलते मुझे लगता है अब तो क्या कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है। टैपलो, फिर टैपलो बोलते हैं नो सर आई एम नॉट, बोले मैं नहीं मैं एग्जैजरेट नहीं करता। इन फॉर्म, फॉर्म मीन्स इन क्लास, ठीक है, वेयर इज फॉर्म, इट इज क्लास। द अदर डे he made one of the classical jokes, classical very old joke, traditional jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself include। बोलते सर कुछ टाइम पहले ना क्लास में उन्होंने कुछ जोक्स क्रैक करे थे और किसी को समझ नहीं आया, कोई हंसा भी नहीं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। स्टिल आई न्यू ही वुड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड, बोलते बट वो क्रैक कर रहे थे तो मैं हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, वो you know to show make him politely, मतलब I wanted to show respect to him and be polite to him, so I started to laugh and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke, but ठीक है, now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now, you laugh sir। तो बोलता है कि फिर वो बोलता है कि सर उस दिन उन्होंने जो क्रैक किया था किसी को भी समझ नहीं आया था, ठीक है, और मुझे भी नहीं आया था, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस द फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, ठीक है, और मेरे को ना बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने क्या करा, इतना पुअर जोक क्रैक करा, ठीक है। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, बोले मुझे याद ही नहीं है कि जोक क्या है, बट सपोज आई मेक इट, तो बोलते बट सपोज आई मेक इट, बोल रहे बट नाउ यू लाफ सर। तो फिर इस बात को सुन के ना फ्रैंक है जो हंस पड़े। टैपलो इन अ जेंटल थ्रोटी मैनर, ठीक है, वो क्या बोलते हैं अगेन उसको इमिटेट करके, फिर क्या करता है, सॉरी यहाँ पर था ना, टैपलो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैपलो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, अब वो उनकी कॉपी कर रहे हैं। मिस्टर कॉकर हैरिस, I noticed, I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तब बोलते हैं उनकी कॉपी करते बोलते हैं टैपलो बोल रहा है कि सर ने मुझे बोला है
टैप्लो यू लाफ्ड एट माई जोक कि तूने मेरे जोक पे हंसा. आई नोटिस मैंने तुम्हें नोटिस किया. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस. बोल रहे कि मैं बहुत ज़्यादा प्लीज हूँ कि तुम्हें क्या आ रही है, लैटिन लैंग्वेज भी आ रही है. एंड यू आर सो रेडली हैव अंडरस्टूड कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तुमने वो जोक समझा है जो पूरी क्लास ने नहीं समझा है. परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट. तो बोलता है कि परहैप्स कि अब तुम क्या करो, क्लास में पूरे के पूरे क्लास में उसको एक्सप्लेन करो, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर. तो दे कुड इवन शेयर द प्लेजर. ठीक है. द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स. अब क्या होता है, जैसे वो बातें करते रहते हैं तब तक एक डोर पुश होता है, वहाँ से मिली क्रॉकर हैरिस आती है. वो कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है. शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s. तो वो कौन है, एक पतली सी वुमेन है एंड शी इज़ अ what do you call it, she's a in 30s, okay, late 30s, right, rather more smartly dressed than the general run of the schoolmaster's wife. general run, general trend. ठीक है. तो उन जो और स्कूल मास्टर्स की वाइफ हैं उनसे ज़्यादा अच्छी ड्रेस्ड अप है. शी इज़ वेयरिंग अ केप. केप इज़ अ शॉर्ट कोट, और जैसे पोंचू टाइप होता है या ओवरकोट टाइप होता है, श्रग जो हो जाता है, राइट, यू कैन राइट. एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट एंड शी इज़ कैरिंग व्हाट, अ शॉपिंग बास्केट. शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक. तो शी इज़ standing behind a screen and she's watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. मतलब अभी वो उनको नोटिस करते हैं. ठीक है. मुझे इसमें ये है कि फ्रैंक अभी फ्रैंक ने नहीं नोटिस करा है, बट टैप्लो ने नोटिस कर दिया कि मिसेस क्रॉकर हैरिस वहाँ गए. फ्रैंक, कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क. तो बोलते कम अलोंग टैप्लो. क्या जोक था, कम, टेल मी, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ. बोल रहा कि इतना सेल्फिश मत हो कि तू क्या करेगा, जोक अपने पास ही रखेगा. टेल दी अदर्स. ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिस. तो बोलते बता, और तब तक वो क्या करता है, नोटिस करता है किसको, मिली को. ठीक है. वो बोलते ओह लॉर्ड. फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली. और वो उसको लगता है कि वो फील रिलीव करता है. तो फ्रैंक स्लोली मूव्स नियर द डेस्क and tries to tell the joke. He suddenly stops speaking after noticing Millie. Now Frank turns back and appears to be very happy to see Millie. वो दिखा रहे हैं. ठीक है. Now Frank, oh hello. Hello means hello. तो बोलता है oh hello. तो मिली बोलती है without expression. उसके कोई मुंह पे expression is like hello. She comes down to the sideboard and puts a basket on it. अब वो क्या करती है, जो साइड बोर्ड से अपना बास्केट उठाती है, टेबल में रख के और अपनी चीज़ें कुछ सर्च करती है बास्केट के. टैप्लो मूविंग अप टू दी लेफ्ट टू फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली. ठीक है. अब टैप्लो जाता है और किसको, डेस्परेटली. फ्रैंटिकली मीन्स डेस्परेटली. किससे बात करने, मिस्टर फ्रैंक से. कौन, टैप्लो. डू यू थिंक शी हर्ट. तो टैप्लो पूछ रहे हैं, सर आपको लगता है मैम ने सुन लिया होगा. Frank shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape, that is, what do you call it, a small coat or, shrug, and hangs it in a hall stand. ठीक है. और hall stand में, I think she did. तो Frank बोलता है मुझे लग रहा है वो सुन लिया. She was standing there quite a time. बोलते मुझे लग रहा है वो काफ़ी देर तक खड़ी रही. Taplo, if she did and she tells him, there goes my remove. बोलते अगर इनको पता लग गया कि हम क्या बातें कर रहे हैं और इन्होंने बता दिया तो मेरा पूरा का पूरा रिमूव चला जाएगा. दैट मीन्स मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा. आई विल नॉट गो टू द नेक्स्ट क्लास. फ्रैंक, नॉनसेंस. ही क्रॉसेज द फायर प्लेस. चुप हो जा, नॉनसेंस ऐसी बात मत कर. एंड देन ही क्रॉसेज द फायर प्लेस. मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट. मिली टू टैप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड. अब मिली किससे बात कर रही है, टैप्लो से बात कर रही. क्या बोल रही है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो. टैप्लो, मूविंग लेफ्ट डाउन टू द यस. मिली, ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम. इफ़ आई वर यू आई वुड गो. तो वो बोलती कि वो कहाँ पर है, बर्सर के पास है. बर्सर कौन है, होता है चिल्ड्रन जो स्कूल में मनी मतलब टीचर्स को कितनी सैलरी देनी होती है, कब देनी होती है, फाइनेंशियल जो स्टेटस देते हैं वो बर्सर होते हैं. ठीक है. ही इज़ एट दी बर्सर एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम. बोले अब थोड़ा टाइम उनको लगेगा. अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं चली जाती. टैप्लो, डाउटफुली.
ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, बोले वो बोल रहे थे कि मैं पर्टिकुलरली अभी आ जाऊँगा. वेल, वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर of an hour and come back. बोले why don't you run for 15-20 minutes and come back. She unpacked some things from the basket. अब वो basket के अंदर देख रही है सामान निकाली. टैप लो. Supposingly he gets here before me. अब बोल रहे कि अगर इन 15-20 मिनट के अंतर वो आ जाते हैं तो फिर क्या होगा. मिली स्माइलिंग, आई टेक द ब्लेम. तो मिली बोल रही कि नहीं नहीं, मैं आई टेक द ब्लेम ऑन मी. शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. और वो प्रिस्क्रिप्शन निकालती है बास्केट से बाहर. आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. तो बोलते कि आई टेल यू व्हाट, तुम क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो उनके लिए. टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर दिखाते हैं ना, मेडिसिन लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड. और ये दवाइयाँ लेके आ सकते हो, राइट. तो कौन बोल रहा है, मिली बोल रही है. शी रिक्वेस्ट टैपलो टू डू अ वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकल. शी सेड हिम टू गो टू मेडिकल शॉप एंड बाय मेडिसिन, है ना. टैपलो, ऑल राइट मिसेस कॉकर हैरिस. ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द ड्रॉ अपराइट. और वो बोलता है कि ठीक है, राइट, आई विल गो. ओके चिल्ड्रन, नाउ till here we have completed the whole chapter. I hope you have understood every and each thing of it. Thank you children.